Hello everybody, this is Rusikesh Sahu and welcome you all Standard 9 Civics class. So what we will learn today? Today we will discuss the last major political executive institution, that is the president. So we had already discussed about the prime minister as an executive institution. Then in our last class we had discussed about the council of ministers as an executive institution, and we saw that who of the council of ministers is appointed by whom and what are the different rank in the council of ministers. So we had discussed about all these topics in the last class. Then today we will discuss about the president. President, that means he or she is the head of the state. He or she क्यों यहाँ पर लिखा गया है? क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बताया था, that means this post, the post of president can be held by any male or female person. So that's why he or she is mentioned here, and he and she, that means the president is the head of the state. So head of the state, ये इसके क्या बात है? जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, what we had discussed in the last class, that prime minister is the head of the government. So here it is mentioned that president is the head of the state. So what is the difference between prime minister and the president? So prime minister जो हमारा गवर्नमेंट होता है, जो कि कंट्री को रन करता है, जो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. बट प्रेसिडेंट जो कि हमारा जो नेशन होता है, कंट्री होता है, कंट्री की हेड होते हैं प्रेसिडेंट. तो उस वजह से प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है. President, he has the nominal power like Queen of Britain. That means in India or in president or in parliamentary form of government, mostly prime minister enjoy the main power in a country, but the president enjoy the nominal power like Queen of Britain. तो जैसे कि ब्रिटेन की जो क्वीन होते हैं, उनके हाथों में ज़्यादा पावर नहीं होते, क्योंकि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर है, एंड ऑल द पावर, इंपॉर्टेंट पावर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड क्वीन इज जस्ट लाइक ए as they are following the constitutional monarchy, so the queen is just a nominal head of the Britain. So इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, so he is also enjoying the nominal power, and the real power is enjoyed by the prime minister. President mostly his functions are mostly ceremonial. तो जैसे कि सेरेमनी में हमारे जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, फादर ग्रैंडफादर जो होते हैं, वो सेरेमनी में ज़्यादा सज धज कर निकलते हैं, लेकिन जो ग्रैंडफादर होते हैं तो उनका ज़्यादा कोई पावर नहीं होता है. तो उसी तरह का प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस होता है वो मोस्टली सेरेमोनियल होता है, उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है. पार्लियामेंट को और जैसे कि एड्रेस करना हो, या कुछ कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट करना हो, फाइनल डिसीजंस में साइन करना हो, तो इसी तरह का सेरेमोनियल फंक्शंस वो यूटिलाइज करते हैं. प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. So as we had discussed in the earlier class, the prime minister is not directly elected by the people but appointed by the president. So in the same manner, the president is also not directly elected by the people. Then the question is that, then how he is elected? If the president is not elected by the people, directly elected by the people, then how the president is elected? अगर लोगों के द्वारा वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? कौन उनको इलेक्ट करता है? President is elected by MPs and MLAs of the state legislative assembly. तो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, बोथ हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है. The one who get the majority of votes is elected as president. That means here voting is given by the MPs and MLAs, and the person who get the majority number of votes is elected as president. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी यहाँ पर इलेक्शन, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन जब होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट देते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs भी वोट देते हैं. और वोट में जिस व्यक्ति को, जो पर्सन यहाँ पर इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, जिस व्यक्ति को, द पर्सन हु गेट द इलेक्ट मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स, मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स बाय द एमपीज एंड एमएलए, दैट पर्सन इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उसी व्यक्ति को, जिसको ज्यादा वोट मिलता है एमपीज और एमएलए का, तो उन्हीं को प्रेसिडेंट के तौर पर क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है.
देन वो कह रहा है देखो, ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलर मैंडेट का मतलब क्या है? As the president is the head of the state, so he is mostly representing our country, our nation at international level and national level. So he is the head of the state. So उस वजह से वो हमारे entire nation को represent करते हैं international या national level में। लेकिन वो कह रहा है what can never claim the direct popular mandate. Popular mandate का मतलब क्या होता है? We had discussed that prime minister is directly elected by the people, and as I told you, as Prime Minister is directly elected by the people, so that's why Prime Minister enjoying the real power in a country, and he is the head of the government and enjoying the real power in a country, executive power in a country. So President is also elected in the same manner, indirectly elected. But as he is indirectly elected, that's why he is never claimed the direct popular mandate. तो popular mandate मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रियल पावर को एंजॉय करने का जो कि क्लेम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो पावर एंजॉय करते हैं, तो ये तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, तो मैं फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनूंगा, मैं सारे डिसीजन फाइनल डिसीजन मैं लूंगा प्राइम मिनिस्टर की तरह। तो प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? तो उस वजह से जो कि पॉपुलर मैंडेट जो होता है ये कभी भी क्लेम नहीं करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को पॉपुलर मैंडेट दिया गया है क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। Then let's discuss the powers and functions of the president. If we go by the constitution, president has the power to do everything. अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, तो उससे ये पता चलता है दैट प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डू एवरीथिंग। तो कुछ भी करने का, हमारे कंट्री में कोई भी डिसीजंस लेने का या कुछ भी करने का जो क्षमता होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या करने का क्षमता होता है, क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? सो ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट एक्टिविटीज दैट मीन्स व्हेनेवर एनी लॉज इज पास by the government, when is new rules and regulation framed by the government, when is a new policies implemented by the government, that can be become a law that can be mostly implemented after the assent of the president. So उस वजह से वो क्या यहाँ पर लिखा गया है that all government activities takes place in the name of the president. तो गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशन जो भी बनाता है, बिना प्रेसिडेंट के असेंट के बिना, परमिशन के बिना उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो उस वजह से ये मेंशन किया गया है that all government activity takes place in the name of the president. Second power of the president, that is major appointments such as the chief justice of the Supreme Court and High Court, judges of the High Court and Supreme Court, governors of different state, election commissioners, ambassador to the countries are done by the president. तो जितने मेजर इंस्टीट्यूशंस होता है, तो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं, सो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब दो फॉरेन सर्वेंट जो होते हैं, फॉरेन सर्विस होल्डर जो होते हैं, वो हमारे कंट्रीज को जो कि दूसरे कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल में जो रिप्रेजेंट करते हैं, राजदूत जिनको कहा जाता है, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर तुम ये देख सकते हो हमारा इंडिया के जितने सारे मेजर इंस्टीट्यूशन से, सारे इंस्टीट्यूशंस की हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। Then next, all national treaties and agreements are made in the name of the president. That means whenever any agreement is mostly signed between different countries, between India and any other foreign countries, that mostly takes place in the name of the president. तो सोच लो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में किसी भी तरह का डील होता है, या इंडिया फ्रांस के बीच में जो राफेल की डील हुआ, राफेल खरीदने के लिए जो डील हुआ था, तो इस तरह का जब फॉरेन कंट्री या इंडिया के बीच में जो डील होता है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। Then the next power of the president, that is the president is the supreme commander of the different defense forces of India. So supreme commander, तो हमारा जो तीनों डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी,
तो इन तीनों डिफेंस फोर्सेस की जो हेड होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट होते हैं। आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की हेड, ये तीनों डिफेंस फोर्सेस की हेड भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये वो कह रहा है, देखो, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट मीन्स द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस अलोन. The president can exercise all the power, all the above power only on the advice of the council of minister. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपने मर्जी से ये किसी भी तरह का डिसीजंस नहीं ले सकते, वो चाहे हेड ऑफ द स्टेट्स हो, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन वो किसी भी तरह का अकेला डिसीजंस नहीं ले सकते। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के तौर पर, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगी उसी एडवाइस को वो क्या करते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं, इसी एडवाइस को वो इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करते हैं। देन सवाल ये है, व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम? So, whatever advice is given by the council of minister to the president, so what will be happen when president is not agree to mostly obey that advice? अगर president राजी नहीं है उस advice को मानने के लिए, तो उस टाइम पर क्या होगा? So, if president is not satisfied with the advice given by council of minister, he or she can ask the council of minister to reconsider its advice. अगर council of minister के द्वारा दिया गया कोई भी advice में president जो कि satisfied नहीं है या उसमें agree नहीं है, तो president वहां पर क्या कर सकते हैं, council of minister को उसी decision के ऊपर या उसी advice को reconsideration करने के लिए suggestion दे सकते हैं। But he or she is bound to act according to the advice rendered after reconsideration. और reconsideration के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन से एडवाइस देगा उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन के बाद हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगी प्रेसिडेंट उनको मानने के लिए बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं। सो केस विथ द लॉ मेकिंग, तो जो लॉ मेकिंग केस होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाहता है, लॉ जो बिल होता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के आसन के लिए जो कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। प्रेसिडेंट वहां पर अगर इसी लॉ से एग्री नहीं करते तो जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दोबारा भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बाउंड नहीं है कि प्रेसिडेंट की एडवाइस को मानने के लिए, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग द सुप्रीम power on behalf of the people. Parliament is enjoying the supreme power on behalf of the people, so they are also not bound to obey the suggestions given by the president. ओके, तो उसके बाद पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसी को रिकंसिडर करके कोई कुछ चेंजेस करके प्रेसिडेंट की सजेशन को वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद जो भी जब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू? तो तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा, तो प्रेसिडेंट करते क्या है? अगर उनका खुद का कोई पावर नहीं है, वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है उसको फॉलो करते हैं, देन प्रेसिडेंट के हाथों में कुछ पावर है या नहीं? डेफिनेटली क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, but in case no party or coalition get majority in the Lok Sabha, then president exercise her discretionary power. तो प्रेसिडेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है that the prime minister is appointed by the president, but who can become a prime minister? Only the leader of the majority party or the leader of the coalition party can be appointed as prime minister by the president. तो जो रूलिंग पार्टी की जो लीडर होते हैं या फिर जो हमारे कोalition पार्टी की जो लीडर होते हैं उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं। लेकिन सवाल यह है that if majority, but if in case of no party or coalition get majority in the Lok Sabha, then what will be happen? At that situation president exercise her discretionary power. अगर किसी भी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला या कोalition पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिला, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं।
बट वहाँ पर एक कंडीशन है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू शो देयर मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ। तो 1 महीने का टाइम उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, और 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को पार्लियामेंट में अपना मेजॉरिटी शो करना पड़ेगा। इफ दैट पर्सन इज फेल टू शो द मेजॉरिटी विद इन 1 month, then that person can be dismissed from their position and the parliament can be dissolved and the president can mostly give the order for re-election। तो वहाँ पर re-election किया जा सकता है। So these are the powers mostly enjoyed by the president। देन देखो यहाँ पर तुम्हें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ सकता है तुम्हारे लिए। क्या वो क्वेश्चंस हो सकता है? यू कैन द क्वेश्चंस यू मे गेट ए क्वेश्चंस इन योर एनुअल एग्जाम, दैट इज डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यू कैन मेंशन ऑल दिस पॉइंट, व्हाट आर द पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much।